سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایموشنل اسٹوڈنٹس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جو ایک سکھ استاد ان کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ کرناٹک کی کنڑا زبان میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر اس بقرعید میں کہیں یا عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانور نہ بکے جانے کی وجہ سے کسان طبقہ بڑا پریشان ہے۔ کنڑا زبان میں ہے، اس کی تفصیلات سناتا ہوں۔ آلور جامع مسجد کے امام سمیع اللہ پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ نوتن گوڑا نامی وہ شخص ہے، چترا درگا سے آ رہی خبر ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ تلنگانہ کے سی ایم نے کس طرح سے بی جے پی حکومت کو لتاڑا ہے، اور ادھر ترکی میں ایک اور میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، تو امریکہ میں پھر سے فائرنگ ہوئی ہے اور 3 پولیس اہلکاروں کا گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تاج محل کے تہخانے میں کیا واقعی میں ہندو دیوی دیوتا ہیں؟ کیا رپورٹ سامنے آئی ہے؟ آسام میں اب تک کتنی تباہی ہوئی؟ گودھرا ٹرین سانحے میں 20 سال بعد کس کو سزا ملی ہے؟ کنہیا لال قتل میں بی جے پی اور RSS کا ہاتھ ہے، کس نے الزام لگایا؟ یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ ناظرین گرامی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ جن احباب کو حصہ لینا ہے فوری طور پر لے لیں، تاکہ ہم کو ترتیب بنانے میں آسانی ہو۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں کرناٹک کے ایک علاقے میں لے جاؤں جس کا نام ہے چترا درگا۔ یہاں پر ایک آلور جامع مسجد آتی ہے جس کے امام کا نام ہے سمیع اللہ۔ اس پر ایک شخص نے تیز دھار ہتھیاروں سے اس امام پر اس وقت حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، دراصل بتایا جا رہا ہے کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے حملہ ہوا، اور جس نے حملہ کیا ہے وہ نوتن گوڑا ہے۔ گزشتہ سال گنیش فیسٹیول کے موقع پر نوتن گوڑا نے یہاں مسجد کے سامنے پٹاخے جلائے تھے، جس کو لے کر کے جامع مسجد کے امام سمیع اللہ نے آبجیکشن کیا تھا اور اس کو روکا تھا، اور اسی موقع پر ان دونوں کے درمیان میں کچھ لفظی جھڑپ ہوئی تھی۔ تب سے لے کر کے اب تک نوتن گوڑا امام کے خلاف دشمنی کو اپنے دل میں پالے آ رہا تھا۔ سمیع اللہ جو بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں، جن پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا تھا، وہ ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، جبکہ نوتن وہ فرار ہو چکا ہے، اور پولیس اس سلسلے میں جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، 1 سال کی پرانی دشمنی، نوتن گوڑا اور خود مسجد کے سامنے پٹاخے جلایا، اسی کے چلتے امام پر جو ہے کس طرح حملہ کر دیتا ہے۔ اور لگاتار طلباء، مدرسے جانے والے طلباء، سفر کرنے والے طلباء، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے مخصوص لوگوں کو ہی نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، مویشیاں بالخصوص جو ہے جب عید الاضحیٰ آتی ہے، اس موقع پر کسان طبقہ خوش ہوتا ہے کہ جو ہے اس مرتبہ ان کے جو بڑے جانور ہوتے ہیں بکیں گے، اور اچھی خاصی اس موقع پر ان کو رقم بھی ملتی ہے۔ لیکن بھارت کے اکثر ریاستوں میں اس وقت جو ہے جس طرح کا قانون پاس کیا گیا بیف کو لے کر کے، گایوں کو لے کر کے، تو ایسے حالات میں بڑے جانور کا خرید و فروخت یوں سمجھیے کہ نہ کے برابر ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں کسان طبقہ بڑا پریشان ہے، اور وہ اس وقت حکومت پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں پر منڈی میں لا کر کے ہزاروں کی تعداد میں بیل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دور دور تک ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہم ان بیلوں کو لے جائیں گے، اور جو ہے کرناٹک کی اسمبلی کے سامنے جو ہے ہم لوگ اس کو کاٹیں گے۔ ہمارے تو حال ایسے ہے کہ کسانوں کا نہ کسانی برابر ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں جو ہے ہمارے
जो जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं ना उसको फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं। हर तरफ से जुल्म ही जुल्म है कहते हुए इनके इस अल्फाज का खुलासा बयान किया जा सकता है। कर्नाटक के हमारे अहबाब को मैं इस वीडियो को छोड़ देता हूँ, आप इसको सुने और मुमकिन हो सके तो ये गौरक्षक नाम के जो भक्षक हैं उन लोगों को ज़रूर पेश करने की कोशिश करें, जो है इन लोगों को पूजने को तो कहते हैं लेकिन उसका कोई मुतबादिल किसानों के सामने पेश नहीं करते, जिसकी वजह से किसान का पूरा तबका परेशान है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं लौटता हूँ। ಸಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಬಂದನಿ, ಆರಾಮಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮಾರಾರಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಕುಂತನಿಲ್ಲಿ. ಯಾವನ್ ತಗಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಕಟ್ತವನು, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಒಯ್ದು ಕೇಳೋರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡದಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ರೈತ ಒಯ್ಯಾನ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಿಶನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾನ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಜನನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ದುಡ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಶಿವ್ರ ಶಂಟ ಹರಿಯ ನೀವು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೆ ಗಂಜಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡವಿಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮಗ್ ತಿನ್ನ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇವೆ, ನಮ್ ಹೆಂಚಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ತಗೊಂಡ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯ್ಯಾರ, ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ರೈತರುಗಳು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಗೋಳು ಹಚ್ತೀರ ಹತ್ತಿರ ರೈತರಿಗೆ. नाज़रीन गिरामी, उस्ताद और शागिर्दों का एक अजीब ही रिश्ता होता है और जब तलबा किसी उस्ताद को दिल से मान लेते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, उसके पढ़ाने के अंदाज़ को और मोहब्बत के साथ पेश आने के अंदाज़ को, तो फिर उससे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला और मंज़र कश्मीर के बड़गाम में देखने को मिला, जहाँ पर एक सिख टीचर का जो है ट्रांसफ़र हो गया। तो स्कूल के बच्चे बड़े इमोशनल और जज्बाती हो गए, जिसको लेकर कि जो है सिख टीचर बच्चों को समझाता भी रहा और फिर वापस पलट कर के आकर के मज़ीद समझाने की कोशिश की। तो इस मौके पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक उस्ताद और स्टूडेंट्स का किस तरह से जो है ताल्लुक़ होता है, इसको बयान करने की कोशिश हुई है इस वीडियो के ज़रिए से। आप इसका मंज़र देख लें, बस इसमें जो है बच्चों के रोने की और दीगर चीज़ों की आवाज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलता हूं कि किस तरह तेलंगाना के सीएम ने कोल को लेकर के जो बीजेपी हुकूमत सियासत कर रही है और दीगर रियासतों पर दबाव बना रही है कि उसको ख़रीदा जाए, उसको लेकर के किस तरह से लताड़ा है। इसको आप आवाज़ के साथ सुनेंगे तभी इसकी हकीकत को समझ पाएंगे। इसको आप सुन लें, मैं फिर अगली खबरों की जाने बढ़ता हूँ। साहूकारों को हेल्प करने में आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है, ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कॉलरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले। हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पर हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा
जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर अमेरिका गोलियों से दहल उठा है, फायरिंग से दहल उठा है। अमेरिकी रियासत केंटकी में घरेलू तशद्दुद के मुलजिम ने 3 पुलिस एहलकारों को गोली मार करके हलाक कर दिया है। इतवार की ये रिपोर्ट है। पुलिस ने 49 साला मुलजिम को हिरासत में भी ले लिया। फ्लाइट काउंटी की शेरिफ जॉन हंट ने बताया कि जब पुलिस उस शख्स के घर पहुंची तो उसने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि 166 की आबादी वाले मशरक़ी केंटकी के पहाड़ी हिस्से में वाक़ छोटे से कस्बे एलन में पेश आए इस वाक़े में दीगर 4 लोग ज़ख्मी भी हो गए। उन्होंने बताया कि जुमेरात की देर रात मुसल्लह तसादुम में हलाक होने वाले एहलकारों की शनाख्त कैप्टन रॉल्फ फ्रीज़र, डिप्टी विलियम पेट्री और डॉग के हैंडलर जेकब शेफन्स के तौर पर हुई है। नाज़रीन गिरामी, मकामी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे के करीब वो मुलजिम के घर में दाखिल हुए तो उन पर राइफलों से फायरिंग की गई। उनका मानना था कि लॉन्स स्टोर्स नामी मुलजिम ने तकरीबन 3 घंटे तक फायरिंग की और अहल खाना के समझाने पर हथियार डाल दिए। पुलिस ने उसके खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, घरेलू तशद्दुद के दौरान घर वालों ने पुलिस को बुलाया था और पुलिस की ही जान चली गई है। किस तरह से जो है अमेरिका में ये गोलियों की घन गरज हर 8 दिन में सुनने को मिलती है। नाज़रीन गिरामी, कन्हैया लाल के कत्ल के बाद अमरावती में कुछ दिन पहले पेश आने वाला एक कत्ल इस वक्त सुर्खियां बना रहा है। और ये सुर्खी इसलिए बनाया जा रहा है कि इस कत्ल के मामले को अब नूपुर शर्मा की हिमायत के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं या फिर बीजेपी की जानिब से इस सिलसिले में तहकीक करने की बात सामने आ रही है। तफसीलात ये है कि अमरावती कत्लेआम के मास्टरमाइंड या कलीदी मुलजिम को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि कत्ल के मास्टरमाइंड का नाम इरफान खान है। इरफान खान अमरावती में रहबर नामी एक NGO चलाता है। इरफान अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोले के कत्ल का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने यह भी बताया कि इरफान के कहने पर उससे कबल गिरफ्तार 6 मुलजिमान ने मिलकर कत्ल को अंजाम दिया था। इरफान के हुक्म के बाद उन 6 मुलजिमान ने बगैर कुछ सोचे समझे इस वारदात को अंजाम दिया। मजमूई तौर पर इस कत्ल के 7वें मुलजिम अब पुलिस की हिरासत में है। नाज़रीन गिरामी, इससे कबल उमेश कोल्हे कत्ल केस में पुलिस ने 6 मुलजिमान को जो गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ IPC की दफ़ा 302, 120B और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इब्तदाई तौर पर तो ऐसा लगता है कि वाक़या इस वजह से हुआ है कि उमेश कोल्हे ने तो नूपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ATS इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन कातिलों ने भी उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की तरह कत्ल का अंदाज़ा अपनाया था। 22 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में ये कत्ल पेश आया था। उसका नाम था उमेश कोल्हे और जिसको 50 साला ये शख्स है जिसका गला काट करके कत्ल किया गया था। अमरावती पुलिस ने इस कत्ल केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद पता चला कि इस सिलसिले में इसने जो है नूपुर की हिमायत में एक ट्वीट भी किया था, एक पोस्ट लिखी गई थी फेसबुक पर, जिसकी वजह से NIA की एक टीम ने जांच के लिए अमरावती पहुंच गई और इस मामले को उस मामले से मिलाकर के देखने की भी कोशिशें हो रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है कत्ल के मामलात एक दूसरी कड़ियों के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं आगरा और ये देखने की कोशिश करते हैं कि महकमा आसार कदीमा ने ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवता होने का दावा किया है या नहीं। दरअसल उन्होंने तरदीद कर दी है। एक RTI की हक़ इत्तलाअत दरख्वास्त के जवाब में ये मालूमात दी गई हैं। ASI ने यह भी बताया कि ताजमहल मंदिर की ज़मीन पर नहीं बना। दरअसल 12 मई को तृणमूल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान साकेत S गोखले ने हक़ इत्तलाअत की दरख्वास्त पेश की थी। अर्ज़ी में उन्होंने ASI से 2 सवालों के जवाब मांगे थे। पहले सवाल में उन्होंने ताजमहल की ज़मीन पर मंदिर होने का सबूत मांगा था, जबकि दूसरा सवाल तहखानों के 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से वाबस्ता था। ASI ने एक सतर में इसका जवाब दिया। ASI के राबिता आम्मा के अफसर महेश चंद मेना ने पहले जवाब में सिर्फ नो लिखा और दूसरे सवाल के जवाब में लिखा तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि भारत की महकमा आसार कदीमा भी इस बात को मानती है कि जो है ताजमहल के नीचे कुछ है नहीं जिसका दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, आसाम जिस तरह से डूबा वो सारी तस्वीर आप लोगों के सामने हैं। अब उसकी साफ़ और वाज़ेह रिपोर्ट एक सामने ये आई है कि 35 अजला में से 27 अजला में सैलाब की वजह से 22.17 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जबकि लैंड स्लाइडिंग और बारिशों के सबब 174 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके।
आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया कि अप्रैल से अब तक 156 अफराद प्री मानसून और मानसून के सैलाब में अपनी जानी गंवा चुके, जबकि आसाम के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी की तूदे गिरने से 18 अफराद हलाक हुए। ये SDMA के एक एहलकार ने बताया कि सैलाब से मुतासर अजला का दौरा करने के बाद 2 बैन वज़ारती मरकज़ी टीमों ने हफ्ते के रोज़ चीफ सेक्रेटरी जश्नु बरवा और आसाम हुकूमत के दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। हिंदुस्तानी फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़िज़ाया, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के सीनियर अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की थी। तो नाज़रीन ग्राम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया सैलाब में आसाम ने क्या तबाही मचाई और उसको किस तरह से जो है दीगर ख़बरों में दबाने की कोशिशें की गई। नाज़रीन, गोधरा ट्रेन सानिहा तो आप जानते ही हैं, 20 साल बाद रफ़ीक भटक को इस सिलसिले में कसूरवार करार दिया गया है और मकामी अदालत ने उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई है। जी हाँ, गोधरा की एक अदालत ने 2002 के गोधरा ट्रेन साने में एक मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस हमले में 59 कार सेवक मारे गए थे। गुजरात में पंचमहल ज़िले के गोधरा में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हफ्ते के रोज़ मुलजिम रफ़ीक भटक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। भटक को फरवरी 2021 में गिरफ़्तार किया गया था। गुज़िश्ता साल उसकी गिरफ़्तारी के बाद मुकदमा शुरू हुआ था। रफ़ीक भटक पर 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवकों को लेकर लौट रही एक ट्रेन को आग लगाने के मामले में शामिल होने का इल्ज़ाम था। नाज़रीन गिरामी, आपको तो मालूम होना चाहिए कि सानिया के बाद किस तरह गुजरात में आग लगा दी गई और किस तरह कत्लेआम हुआ मुसलमानों का। जो कुछ भी हुआ गुजरात फसादात 2002 के सिलसिले में आप जानते हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक चैलेंज करने वाली नोटिस को खारिज कर दिए जाने के बाद लगातार जो मामला पेश आया और तेस्ता सतलवाड़ और दीगर एक IAS ऑफिसर को जो गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद गोधरा के सिलसिले में रफ़ीक भटक को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाना, ये सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फ़ैसले के बाद एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने इस वक्त जो मामला उदयपुर में पेश आया उसको RSS और BJP की साजिश बता रहे हैं। जी हाँ, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर और खानवादा आला हज़रत के रुकन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने सनीचर को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के कत्ल के लिए BJP और RSS को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया का कत्ल करने वाले BJP अक़लियती मोर्चा के रुकन हैं, इसमें BJP और RSS का हाथ है। कन्हैया के कत्ल उसकी वीडियो बनाने से ये साबित होता है वीडियो देखकर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बने और मुल्क में तशद्दुद हो। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कन्हैया का कत्ल किया है उन्होंने संगीन जुर्म किया है, ऐसे लोगों को किसी अवामी मकाम पर फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्हैया के अहल खाना के तय मेरी ताज़ियत, उदयपुर जाकर मैं उनके अहल खाना से मुलाकात करूँगा और माशी मदद भी करूँगा। ये बयान जारी किया है तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने। नाज़रीन गिरामी, तुर्की का एक और दिफाई सिस्टम में कामयाबी हासिल की है। तुर्की के गाइडेड मिसाइल आत्माजा का पहली दफ़ा मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम से तजुर्बा किया गया। तुर्की वज़ारत दिफा के सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा गया है कि खुश्की से खुश्की पर मार करने वाले कौमी गाइडेड मिसाइल आत्माजा से पहली दफ़ा मोबाइल गाइडेड सिस्टम के ज़रिए खुश्की से सतह समंदर के हदफ को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक तजुर्बाती फ़ायर बहरा अस्वद में किया गया और कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बयान के साथ तजुर्बाती फ़ायर की वीडियो भी शेयर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, तुर्की की वज़ीरत दिफा इसको एक और कामयाबी मान रही है अपनी दिफाई सिस्टम में कि वो किस तरह से जो है दिफाई आलात बनाने में एक के बाद एक कामयाब होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।